Good morning, everyone. Welcome to today's English class. So, today we are going to take up with another grammar topic, that is modal, or we can call it auxiliary verbs. So, you are going to do this topic for the first time. So, I would like to first tell you what is a modal or an auxiliary verb. So, what are modals? Modal verbs are a special kind of helping verb. As you have done helping verbs, is, am, are, was, were, has, have. So those are helping verbs. But these are special helping verbs which help the main verb to complete the sentence. But their purpose is somewhat different. इनका पर्पस जो है सेंटेंस में आने का कुछ डिफरेंट है. लेट्स सी व्हाट इज द पर्पस. A modal verb helps the main verb to express the mood of the subject, and at the same time it can indicate possibility, ability and willingness, right? So ये जो models होते हैं, the meaning of modal is to express the mood of the subject. ये सब्जेक्ट का मूड डिपिक्ट करता है कि उस टाइम उसका क्या मूड है. कुछ पॉसिबिलिटी शो करनी है, किसी की एबिलिटी शो करनी है, कोई विलिंगनेस शो करनी है, किसी को थ्रेटनिंग देना है, किसी से परमिशन लेनी है, किसी को परमिशन देनी है. whatever is there, that is depicted through modals. So what are different modals or auxiliary verbs? These are can, could, will, would, may, might, must, should. So you have done many a times these modals or auxiliary verbs, but till now you didn't know the purpose of these modals. So modals are also called auxiliary verbs. And what is the meaning of auxiliary verbs? The meaning of auxiliary verb is additional help or support. जो हमें एडिशनली किसी मेन वर्ब की हेल्प करता है या उसको सपोर्ट करता है, दैट वर्ड इज नोन एज ऑक्सिलरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री वर्ब. सप्लीमेंट करना, किसी को सपोर्ट करना, राइट? So this is a very simple and very interesting topics. So before discussing all these models, let's discuss some features of models. So the first feature of model is modal verbs are used to express ability, power, permission, request, possibility और willingness, right? So इस तरह की चीजें जब हमने show करनी होती हैं with the help of models, then models help us. Okay, so the second feature of model is modal verbs are always used with main verb. ये अकेले नहीं काम कर सकते, इनके साथ मेन वर्ब का होना जरूरी है, because as I already told you, these are an additional help or additional support. They are not independent on their own, they are dependent on the main verb, right? So see example, I can lift this box. Here can is a modal and lift is main verb. मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं. सो मेन वर्ब उठाना. if it is not there, then the sense of the sentence will not be complete and it will not make any sense. Now the third feature of modal is modals do not change with the change in subject. जैसे हमने tenses किए थे, वहां हमने देखा था, if we are talking of third person singular, so we are to add s or es with the verb, and singular के साथ कुछ और होता है, plural के साथ कुछ और होता है, like is used with singular, are is used with plural, am is used with first person, I. Then has is used with singular, have is used with plural, was is used with singular, were is used with plural. But here in the case of modals, they do not change with change in subject, they will remain same. Like I can lift the box, we can lift this box. So जो कैन है, जो हमारा मॉडल है, सब्जेक्ट अगर आई था तब भी वो सेम था, अगर वी आ गया इवन देन इट इज सेम. Now the next feature of modal is only first form of the verb is used with modals. So this thing you have to take care of, that we are to use only v1 with the modals. I can lift this box. You cannot use second or third form. It cannot be there I can lifted this box or I could lifted this box. No, with modals you are to use only first form of verb.
Now the fifth feature of model is to is used with ought and used, like ought to and used to. I used to go to the park every evening, मतलब कि मैं रोज पार्क में जाता था, तो इसके साथ टू यूज होगा. ought to, we ought to be smart, हमें स्मार्ट होना ही चाहिए. That depicts our duty. So these are the two models जिनके साथ to accompany करता है. Now we'll discuss all the models one by one. So first I'll tell you the use of can. As you can see on the slide, to show ability. जब हमने अपनी ability दिखानी होती है, ability means योग्यता, आपकी योग्यता. अगेन द सेम एग्जाम्पल आई हैव टेकन, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ. कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मीन्स किसी और की एबिलिटी दिखाना. राइट, माई ब्रदर कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. अब मैं अपने ब्रदर के बारे में बता रही हूँ कि उसमें ये कैपेबिलिटी है कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. सो एबिलिटी, कैपेबिलिटी. नेक्स्ट इज परमिशन. यू कैन सिट इन माई लॉन. जब हम किसी को कह देते हैं कि आप मेरे लॉन में बैठ सकते हो, देन वी यूज कैन. किसी को परमिशन देना, सकते हो, सकती है, जिसमें ये आ जाए वहां हम यूज करते हैं कैन. Now, power of authority. The principal can grant you concession in fee. Only principal has this power that she or he can grant you some concession in your fee. तो उन्होंने अपनी जो authority show करनी है वो भी हम can के through show करते हैं. Right now to give suggestion, अगर हमने किसी को suggestion देनी है, किसी को suggest करना है, we are saying they can help you, कि वो आपकी help कर सकते हैं. To be very simple, जहां सकता है, सकती है, सकते हैं आना चाहिए, there we use this model can. I hope it is very much clear to you, and these are very simple models, right? Nothing to afraid of, nothing to be panicked. The thing is कि हम इनको यूज करते आ रहे हैं, आज तक भी यूज करते आ रहे हैं, and we know the usage of these models. But the thing is कि now it is a full-fledged topic in our grammar, so हमको इसको दोबारा से अलग से करना पड़ेगा. Otherwise बहुत simple चीजें हैं जो हम पहले से करते आए हैं. We are using these models in our compositions, in our question answers, everywhere we are using these models, right? So the next model is could. Use of could. So polite request. जब हमने किसी को कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, देन वी यूज कुड यू पास मी द सॉल्ट. तो इसमें अगर हम प्लीज नहीं भी लगाते, सो दिस इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट वी आर रिक्वेस्टिंग समवन, कि वो, इसका मतलब क्या है, क्या आप मुझे सॉल्ट पकड़ा सकते हो, पास कर सकते हो. मीन्स कहीं आपसे दूर पड़ा है, उसके पास कोई बंदा बैठा है, सो यू जस्ट सिंपली से कुड यू पास मी द सॉल्ट, कि आप मेरे को सॉल्ट पकड़ा सकते हो. नाउ दिस इज पोलाइट रिक्वेस्ट, देयर वी कैन यूज कुड, देयर where we can use could, but actually could is the past form of can, and you know it very well. Can, could. So जब हमने past tense को show करना होता है, then we use could also. तो इस मॉडल के दो यूजेस हैं. एक तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, दूसरा अगर हमने पास्ट टेंस की कोई चीज बतानी हो कि मैं ऐसा नहीं कर सका, अगेन सका, सकी, सके आएगा, सकना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सका, मेरे से ऐसा नहीं हुआ, देन वी यूज कुड. See the examples, it will be clearer to you with the help of examples. He could not reach Fagwada in the morning. वो सुबह फगवाड़ा नहीं पहुंच सका. सो जब हमने पास्ट टेंस के बारे में बताना है, तो वो सुबह फगवाड़ा नहीं पहुंच सका. He could swim when he was 5 years old. जब वो 5 साल का था, वो स्विम कर सकता था. राइट, तो अगेन वी आर टेलिंग ऑफ समवन इन द पास्ट कि जब वो 5 साल का था तब भी वो स्विम कर सकता था. सो कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एज वेल एज फॉर द पास्ट टेंस ऑफ कैन. नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज मे, MAY.
may. तो where do we use this model? First of all, to seek permission. जब हमने किसी से परमिशन लेनी होती है, you use this sentence daily. May I come in? Whenever you are in school, you have gone outside the class, and whenever you return to your class and you ask your teacher, may I come in, ma'am? May I come in, sir? So there we use may. जब हमने किसी से परमिशन लेनी होती है, हम अभी भी, अब आपने ऑनलाइन क्लासेस में देखा होगा, whenever we are asking you a question and we just tell you to raise your hands, और उसके बावजूद भी क्या होता है, many students they say ma'am may I, ma'am may I. That means you are seeking permission from your teacher. Now to give permission, अगर हमने किसी से परमिशन लेनी होती है, इन द सेम वे व्हेन वी वांट टू गिव परमिशन टू समवन, यू मे गो नाउ, हम सिंपली कहते हैं कि यू मे डू दिस, यू मे गो नाउ, यू मे कम टुमारो, आप कल आ सकते हो, आप अब जा सकते हो. सो अगेन इसका मतलब वही होता है सकना, राइट. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी. जब हमने किसी चीज की पॉसिबिलिटी शो करनी है, द न्यूज मे बी ट्रू, न्यूज ट्रू हो सकती है. नाउ बेटा द थिंग इज कि मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी शो करते हैं. लेट मी टेल यू हेयर ओनली, लेट मी क्लियर यू हेयर ओनली, जब तक हम माइट नहीं करते, जो मे है दैट शोज द स्ट्रोंगर पॉसिबिलिटी, एंड माइट जो है दैट शोज द लीस्ट पॉसिबिलिटी. नाउ आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर. इफ आई से इट मे रेन टुमारो, और वही सेंटेंस है, मैं कहती हूँ इट माइट रेन टुमारो. सो दोनों का मतलब तो सेम है कि कल बारिश हो सकती है. इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है. इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट? मे शोज द स्ट्रोंगर पॉसिबिलिटी कि कल 90% है कि बारिश हो सकती है. बट इफ आई से इट माइट रेन टुमारो, तो देयर दैट मीन्स it shows the least possibility, means only 30 to 40% chances are there कि कल बारिश हो सकती है. जब हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, then we use might. जब हमें हमारे पास ज़्यादा श्योरिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, then we use may. Am I right? Am I clear? So might is also the second form of may, means past form of may. So next is wish. जब हम किसी को wish करते हैं, may God bless you, मे यू लिव लॉन्ग, जब हम किसी को ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं, देन वी यूज मे बट विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लामेटरी मार्क, राइट. उसके पीछे हम एक्सक्लामेटरी मार्क जरूर डालेंगे. मे गॉड ब्लेस यू, जब भी हम किसी को विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे माई टीचर लिव लॉन्ग, मे माई पेरेंट्स लिव लॉन्ग. हम करते हैं ना मे ही लिव लॉन्ग. जब आप छोटे थे, यू यूज टू डू द कॉम्पोजिशन, सो यू यूज टू राइट द लास्ट सेंटेंस इन योर कॉम्पोजिशन, मे ही लिव लॉन्ग, and you used to put the exclamatory mark. So there we use may. Now use of shall. shell is also helping verb. आप use कर रहे हो shell आज तक, but आप किसके साथ कर रहे हो? Only with I and we, means only with first person. But when this comes to model, जब हम मॉडल्स की बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू यूज शेल, तो इसका जो रोल है दैट गेट्स रिवर्स्ड. फिर ये फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं आता, इट कम्स विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, जब हमारे हमने ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं वो शो करने होते हैं, then we don't use shall with first person, we use shall with second and third person. ओके. इन द सेम वे जो will का यूज है वो भी रिवर्स हो जाता है. कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, सब जगह नहीं. जब हम नॉर्मली बात करते हैं, जब हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, जब हमने नॉर्मली बात करनी है कि हाँ वी शैल गो टू मार्केट टुमारो, देयर वी विल यूज शैल. बट हियर आर मेनी एक्सप्रेशंस.
5 to 6 expressions are there जहां हम shall use करते हैं. वो कहाँ कहाँ use करते हैं, that I am going to tell you right now. So I am just going to tell you कि will जो है फिर हम वो I और we के साथ use करते हैं. तब हम I और V के साथ shall यूज नहीं करते अगर हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शो करने हैं. बट हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ shall ओनली. shall का रोल रिवर्सिव हो जाता है. I और V की जगह पे वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ आता है. वी डोंट यूज shall विद फर्स्ट पर्सन, वी यूज shall विद सेकंड एंड third person as you can see on the screen, but to convey the following expressions. पर जहां हमने ये नीचे वाले expressions show करने हैं, only there. For example, promise. अगर मैं किसी से पक्का promise कर लूं, हाँ, he shall help your brother, कि वो आपके ब्रदर की हेल्प जरूर करेगा, तो ही के साथ हम shall यूज करेंगे. अदरवाइज what should be there? It should be will. अदरवाइज तो विल आना चाहिए ना कि ही विल हेल्प योर ब्रदर. बट यहाँ पर हमारा पक्का प्रॉमिस शो नहीं होता. जब हमने अपना प्रॉमिस शो करना है, हम बोल के नहीं करते हैं कि आई एम प्रॉमिसिंग यू. वी सिंपली से ही शैल हेल्प योर ब्रदर, तो ही के साथ शैल आ गया. दैट शोज कि समवन इज प्रॉमिसिंग. ओके, ही शैल हेल्प योर ब्रदर, तो उसके बोलने के स्टाइल में भी डिफरेंस देखिए. ही शैल हेल्प योर ब्रदर, तो शेल को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो आपके ब्रदर की हेल्प जरूर करेगा. नेक्स्ट इज अ थ्रेट. थ्रेट होता है धमकी देना. जब हम किसी को धमकी देना चाहते हैं, इवन देन वी यूज शेल. लाइक इफ यू डू नॉट ओबे यू शेल बी डिसमिस्ड. इफ यू डू नॉट ओबे, ओबे के बाद कॉमा आना चाहिए बेटा. इफ यू डू नॉट ओबे यू शेल बी डिसमिस्ड, कि अगर आप मेरे को ओबे नहीं करोगे तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा. लाइक अ थ्रेट. किसी को थ्रेटनिंग करना, धमकी देना कि तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे ना तो तुम यहां से निकाल दिए जाओगे. इवन देन वी यूज शेल. अ कमांड. जब हमने किसी को ऑर्डर देना होता है, व्हाट इज अ कमांड? व्हेन वी गिव ऑर्डर टू समवन, ही शैल डू दिस जॉब, वो इस चीज को जरूर करेगा. हमने ऑर्डर दे दिया कि वो तो जी करेगा ही करेगा इसको. देयर वी यूज शैल. ही शैल डू दिस जॉब. नेक्स्ट है कंपल्शन. जब हम किसी चीज को किसी के लिए कंपल्सरी बना देते हैं, व्हेन इट इज कंपल्सरी टू डू दैट थिंग. द स्टूडेंट्स शैल पे देयर स्कूल फी बाय 10th ऑफ एवरी मंथ, कि स्टूडेंट्स को स्कूल की फीस हर महीने की 10 तारीख को देनी ही होगी. दिस इज अ कंपल्शन फॉर द स्टूडेंट्स कि 10th के बाद means every month 10th of every month, if you are going to deposit the fee after 10th of every month, then you extra fine. तो आपको 10th तक ये फी जो है वो देनी ही होगी. प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन होता है किसी चीज से रोकना, मना करना. Cigarette smoking is prohibited here. You must have read this sentence at many places. हमने बहुत जगह ये सेंटेंस पढ़ा होगा. सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, मींस यहाँ सिगरेट पीना मना है. तो प्रोहिबिशन होता है किसी चीज के लिए मना करना. यू शैल नॉट स्पिट हियर, तुम यहाँ नहीं थूकोगे, एंड दैट इज कंफर्म्ड. राइट, जब हम किसी को अथॉरिटेटिव वे में किसी चीज के लिए रोकते हैं, when we have that full authority with us and we are stopping someone to do that thing, we use shall with the second or third person. Like you shall not spit here, कि तुम यहाँ नहीं थूकोगे. Next is determination, willingness और intention. डिटर्मिनेशन, यही डिटर्मिनेशन है जिस डिटर्मिनेशन के साथ मैंने आपको बोला विलिंगनेस भी शो करनी है, तभी भी आपको शेल यूज करना है. इंटेंशन होता है योर पर्पस, योर ऑब्जेक्टिव, आपका इरादा. इंटेंशन वर्ड हमने कल भी किया था अपने चैप्टर में, है ना, कल या परसों. सो इंटेंशन मीन्स आपका इरादा.
यू शैल नॉट स्पिट ऑन द रोड। तो इसमें तीनों चीजें शो हो रही हैं। एक तो डिटर्मिनेशन है कि नहीं, तुम सड़क पर नहीं थूकोगे। एक विलिंगनेस है कि हाँ, वी मस्ट कीप आवर रोड्स क्लीन। तो एक अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए, हम किसी को कहते हैं नहीं भाई तुम रोड पे नहीं थूकोगे। और एक इंटेंशन है, इरादा भी है कि नहीं, हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है, राइट। सो वी यूज शेल विथ this type of expressions. So what are the expressions? Let's see once again. Promise, a threat, a command, compulsion, prohibition, determination, willingness, or intention, right? Next is use of should. Should का मतलब आपको पता है, चाहिए। जब हम चाहिए की बात करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, right? So these are the following expressions where we need to use should. First is for giving or asking advice। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं, then we use should। You should help the poor। आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। अगर हमने किसी से एडवाइस लेनी है, डू यू थिंक शी शुड अपोलोजाइज? क्या तुम्हें लगता है कि उसको माफी मांगनी चाहिए? अब हम किसी से सजेशन लेते हैं कि किसी ने कोई गलती करी है, तो मैं किसी थर्ड पर्सन से सजेशन ले रही हूं कि आपको लगता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, कमांड और एक्सेप्टेंस। कभी भी हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, कभी भी एक बहुत ही पोलाइट सा ऑर्डर देना हो, पोलाइट सा ऑर्डर, वी आर नॉट डिटर्मिंड, वी आर नॉट गिविंग एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर, एक पोलाइट सा कमांड देनी हो या हमने कुछ एक्सेप्ट करना हो, वी शुड बी थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। हमें मिस्टर शर्मा का थैंकफुल होना चाहिए उनकी वैल्यूएबल एडवाइस के लिए, ठीक है। आफ्टर लेस्ट, टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव पर्पस। लेस्ट का मतलब हिंदी में होता है ऐसा ना हो के, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो आफ्टर दिस वर्ड लेस्ट वी ऑलवेज यूज शुड। लेस्ट जो है बेटा, शुड के बिना आ ही नहीं सकता। एंड इट हैज अ नेगेटिव पर्पस। नेगेटिव पर्पस ऐसा ही कि ऐसा ना हो के, तो उसके बाद कुछ नेगेटिव आएगा, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सो दिस इज अ नेगेटिव थिंग। नाउ सी द एग्जाम्पल, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ओके, सो लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो, and it is always followed by should. So this is the use of this model. Next is to express guess or assumption। जब हम कुछ चीज गेस कर रहे होते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये हो गया होगा, राइट, लाइक it should be 12 o'clock now. Suppose we are not wearing any watch, we don't have any clock in our room, so हम अंदाजा ही लगाते होते हैं, लेटे हुए हैं या हम लाइट ऑन नहीं करना चाहते, we are just in our beds, हम अपने बेड पे लेटे हुए हैं और ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं सोते सोते अभी तो 12 बज गए होंगे। सो हम एक चीज को गेस कर रहे हैं, इट शुड बी 12 o'clock नाउ, कि अभी 12 बज गए होंगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस डिजायर। जब हमने अपनी इच्छा बतानी होती है, नाउ यू शुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो हम किसी के लिए कुछ अच्छा विश कर रहे हैं, अच्छी डिजायर कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि अब तुम अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो जाना चाहिए या तुम काबिल हो गए हो, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है कि तुम्हें अब अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। So this is the use of should. Now there are other models also that we will continue on Saturday now, as we have only we are running short of time now and the topic is lengthy, so we have done uh, shall, should and may and
could and can. So can, could, may, shall. हमने ये जो 4-5 मॉडल्स हैं आज हमने कर लिए हैं, and I hope these are clear to you. But if you still feel any doubt, you are always welcome. Thank you so much, beta ji.